Okay, welcome back. Let's start our class again, lab session, second. And here we will do what? We will do using the virtual lab. Okay, so let us start because when they will come, I don't know. So let us start our virtual lab. So what is the objective of this experiment? Anybody can tell me? Means what we are going to learn from this experiment. When we read the lab copy, we have to write what is the name of the experiment, what is the objective, what is the aim of the experiment. Then you have to write the theory, and then you have to do the circuit diagram. And last of all, you have to plot the behavior characteristics curve. So what is the objective of this experiment? What we can tell? Anybody? Nobody? सुनाई दे रहा है मेरा बात? Yes, sir. एक्चुअली हम लोग यहाँ पर जो सीखने वाले हैं वो है ऑब्जेक्टिव, मतलब क्या सीखने वाले हैं? एट द एंड ऑफ द एक्सपेरिमेंट व्हाट वी गोइंग टू लर्न, दैट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट. सो एक्चुअली इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो है एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ ए पीएन जंक्शन डायोड, explain the function of a PN junction diode, explain the forward and reverse characteristics of a PN junction silicon diode or a germanium diode. So that we will be discussing here. तो हमने पूरा बारे में तो हम लोग सुन लिया है. अब हम लोग थोड़ा अपना, अच्छा डायोड का इक्वेशन जानते हो? करंट का इक्वेशन? एनीबॉडी हु डज नॉट नो? IF is equal to IS into EXP VF by N into VT minus 1, where IS is the reverse saturation current or the liquid current, IF is the current through the diode, that is forward current, VF is the potential difference across the diode terminals, VT is the thermal voltage, which is represented as VT is equal to KT by Q. K is the Boltzmann constant, that is the value is 1.38 into 10 to the power minus 23 joule per Kelvin. Q is the electronic charge, that is 1.6. ये तो बात में बताओ तो Q का वैल्यू कितना होता है? 1.6 into 10 to the power minus 19. क्या? Coulomb. Coulomb. अच्छा. T is the absolute temperature, that is in degree Kelvin. That is 270 degree
273 plus the temperature in Celsius. And N is the empirical constant, which is lies between 0.5 to 2. The empirical constant N is the number that can vary according to the voltage and current levels. It depends on the electronic drift, diffusion, and carrier recombination in the depletion region. Among the quantities affecting the value of the N are diode manufacture, levels of doping, and purity of materials. If N equals to 1, the value of Kt by Q is 26 millivolt at 25 degrees centigrade. If N equals to 2, the value of Kt by Q, that is the thermal voltage, becomes 52 millivolt. For germanium diodes, N is usually considered to be close to 1. For silicon diode, N is in the range of 1.3 to 1.6. Okay? ये सब तुम जानते हो या फिर मुझे लिखना पड़ेगा? लिख दो? Yes, sir. मैं थोड़ा शेयर कर देता हूं, देख लो. देख पा रहे हो? यह है डायोड का इक्वेशन जो मैंने बात किया था. Diode equation in the forward biased. If I think about the forward bias, this is the diode equation we are talking about. The forward bias and the reverse bias regions, the current IF we are talking about. What is IF? IF is the current through the diode, that is forward current. This is the forward current. This IS is the reverse saturation current or leakage current. This IS is the reverse saturation current or leakage current. This is the leakage current. That is the reverse saturation current or leakage current. EXP means e to the power VF by N into VT, where VF is the potential difference across the diode terminal. All we are considering for forward terminal, okay? We are only considering for the forward terminal. So this VF is the potential difference. Potential difference. And N is the, what I told N, VT is the thermal runway that we are dealing with. VT is the thermal runway that is we are dealing with. This is VT is equal to KT by Q, where K is the Boltzmann constant, T is the absolute temperature in Kelvin, and etc. etc. Okay. I think everybody has got it. You can take the screenshot. Those who are not gettable, or you are hiding this thing first. K is the Boltzmann constant. It is 1.38 into 10 to the power minus 23 joule per Kelvin. Q is the electronic charge, 1.6 into 10 to the power minus 19. T is the absolute temperature, that is in Kelvin. 0 degree K is equal to 273 plus temperature in centigrade. At room temperature, that is 25 degrees centigrade, the thermal voltage is 25.7 millivolt. N is empirical constant 0.5 and 2. The empirical constant N is the number that can vary according to the voltage and current levels. It depends on electronic drift, diffusion, and carrier repropagation. This is a very important point. So please learn by heart these things. I am again telling this electronic, what is this? N is equal to inferior constant, lies between 0.5 and 2. It is depending on electronic drift, diffusing, and carrier recombination and the depletion region.
Among the quantities affecting the value of N are the diode manufacturing labels of doping and purity of materials. If N equals to 1, the value of Kt by Q is 26 millivolt at 25 degrees centigrade. When N equals to 2, the value of Kt by Q becomes 52 millivolt for germanium, for 52 millivolts. For germanium diodes, N usually considered to be close to 1. For silicon wire, the N is the range of 1.3 to 1.6. So no problem to everybody. You got the understanding? Clear है? Yes, sir. Yes, sir. और कुछ नोट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. पहला नोट है जो आइडियल डायोड. आइडियल डायोड क्या होता है? डायोड इज अ सिंपल स्विच दैट इज आइदर क्लोज्ड और ओपन. कब क्लोज्ड होता है? जब फॉरवर्ड बायस होता है तब क्लोज्ड होता है, और जब रिवर्स बायस होता है तब ओपन होता है. तो इट इज अ सिंपल स्विच. डायोड इज यूज्ड एज अ स्विच and it is a very simple switch. Specifically, the diode is a short circuit. The diode is a short circuit like a closed switch when the voltage is applied in the forward direction, and it is open circuit like an open switch when the voltage is applied in the reverse direction. वही बोला मैंने, वही आइडियल डायोड होता है. Offset voltage model. Offset voltage model adds the barrier potential to the ideal switch model. When the diode is Fourier wires, it is equivalent to a closed switch in the series with a small equivalent voltage source equal to the barrier potential. कितना है? Silicon के लिए 0.6. That is called the knee voltage or cut-in voltage. But we are discussing about 0.2 for germanium. हम लोग जब लैब कराएंगे तो जर्मेनियम डायोड यूज करेंगे और सिलिकॉन डायोड दोनों यूज करेंगे. फिर आपको दिखाएंगे कि न्यू वोल्टेज कैसे इफेक्ट करता है. With the positive side towards the anode, when the diode is reverse biased, it is equivalent to an open switch, just an ideal model. Complete diode model, it is the most accurate of the diode models. The complete diode model of a diode consists of the barrier potential, the small forward dynamic resistance, and the ideal diode. The resistor approximates the semiconductor resistance under the forward bias. The diode model most accurately represents the true operating characteristics of a real diode. When a diode is in reverse voltage, a leakage current flow through the device. This current can be effectively ignored as long as the reverse breakdown voltage of the diode is not exceeded. ये भी हम लोग दिखाएंगे कि कैसे अगर रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज अगर एक्सीड कर जाए तो कैसे एब्रप्टली चेंज होता है करंट में. ये भी हम लोग दिखाएंगे. At potential greater than reverse breakdown voltage, charge is pulled to the PN junction by the strong electric fields in the device and large reverse current flows. This usually destroys the device. There are special diodes that are designed to operate in breakdown. वही हम लोग यूज करेंगे जेनर डायोड. जेनर डायोड और नेगेटिव रेजिस्टेंस डायोड जो रिवर्स बायस में काम करता है, और उसको यूज करते हैं हम लोग वोल्टेज रेगुलेटर के काम से. जो रेगुलेशन ऑफ वोल्टेज होता है, वोल्टेज का रेगुलेशन नियंत्रण करता है, उसी हिसाब से हम लोग जेनर को यूज करते हैं. और डायोड का एप्लीकेशन तो सभी जगह है. आजकल सभी जगह हम लोग डायोड का एप्लीकेशन यूज करते हैं. तो मैक्सिमम डायोड का एप्लीकेशन हम लोग जो फॉरवर्ड बायस और रिवर्स मतलब पीएन जंक्शन के एप्लीकेशन अगर बोलेंगे तो हम लोग बोलेंगे कि हम लोग डायोड यूज करते हैं एज ए स्विच. सबसे आसानी से सबसे अच्छा स्विच है हमारा डायोड. ठीक है, तो ये था थ्योरी. जितना मिनिमम थ्योरी आपको जानना चाहिए बिफोर डूइंग द प्रैक्टिकल. सो ये था थ्योरी. इसमें से बहुत सारे चीज आपने थ्योरी पे पढ़ा हुआ है जब आपने क्लास किया था बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का. ये एक रिकैप्चुलेशन बन गया, मतलब एक पुनरावृत्ति बन गया. आपने जो पढ़ा है उसका एक समराइज हो गया आपका. एक फिर से आपको दिमाग में चला है कि डायोड क्या है कि क्या नहीं है. अब हम लोग वर्चुअल में लैब सेशन शुरू करेंगे, और फिजिकल लैब सेशन भी हो सकता है, पर आज वर्चुअल लैब करेंगे क्योंकि हम लोग वर्चुअल क्लास कर रहे हैं, इसलिए वर्चुअल लैब होने से सुविधा होगा तुमको. वहां पर हम लोग दिखाएंगे कि सर्किट कनेक्शन कैसे दिखाया जाएगा. तो इसके बाद ऑर्गो सर तुम लोग का है. ऑर्गो सर तुम लोगों को
लैब सेशन में करेंगे। हम फिर वापस आएंगे जब हम जेनेट डाइट करेंगे, पर आज शायद हम लोग जेनेट डाइट नहीं करेंगे। आज शायद हम लोग डाइट का फॉरवर्ड और रिवर्स बायस के लिए काम करेंगे। हम लोग पहले सिलिकॉन डाइट दिखाएंगे, उसके बाद जार्विनियम डाइट दिखाएंगे, आपको दिखाएंगे टेबल कैसे लिया जाता है, आपको दिखाएंगे हम लोग ग्राफ कैसे लिया जा सकता है। आप भी अगर आपका नेट इस्तेमाल करें तो वर्चुअल लैब में घुस सकते हैं और वहां से आप भी वो एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी वर्चुअल लैब शुरू होगा, सभी कंसंट्रेट करना। आप देख सकते हैं यहाँ पर हम लोग VI कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर एक्सप्लेन करेंगे। तो यहाँ पर है फॉरवर्ड बायस सिलिकॉन डाइट, रिवर्स बायस सिलिकॉन डाइट, फॉरवर्ड बायस जर्मेनियम डाइट, रिवर्स बायस जर्मेनियम डाइट, सबके बारे में हम लोग थोड़ा थोड़ा करके देखेंगे। तो हम लोग शुरू करते हैं फॉरवर्ड बायस सिलिकॉन डाइट से। पहले हमको डाइट चूज करना पड़ेगा। तो हम लोग जो लैब में डाइट चूज करते हैं IN4007 वही लेते हैं। अब एक इंटरेस्टिंग चीज होगा, व्हाई इट इज IN4007? कोई जानते हैं? सर वो 1 है कि आई है? 1 कोई बता सकते हैं? Actually, 1N4007 is a rectified diode. डायोड के अगर एप्लीकेशन हम लोग पढ़ते हैं, अगर आप थ्योरी पढ़ चुके हैं तो आप देखेंगे डायोड को हम लोग रेक्टिफायर के हिसाब से यूज करते हैं। तो 1N4007 इज अ रेक्टिफायर डायोड, और alternative actually it is used for converting an AC current to a direct current, and it can pass current up to 1 ampere and have peak inverse voltage rating of 1000 volt. Okay, और कुछ जानना चाहते हैं? ओके, सो यहाँ पर देखिए 1N4007 जब भी मैंने लिया तो यहाँ पर VF इक्वल्स टू 0.6, मतलब फॉरवर्ड वोल्टेज कितना हो गया? 0.6। सो ये क्या है? यही है तुम्हारा जो बैरियर पोटेंशियल को मतलब पार करने के लिए जो मिनिमम वोल्टेज आपको सर्किट में देना पड़ेगा, जिसे हम लोग बोलते हैं नी वोल्टेज और कट इन वोल्टेज, वही है 0.6 फॉर 1N4007 डायोड। इसका मतलब अगर 0.6 के नीचे हम लोग वोल्टेज सप्लाई देंगे तो कोई करंट कंडक्शन नहीं होगा। करंट कंडक्शन नहीं होगा तो हम लोग एमीटर में कुछ वैल्यू नहीं मिलेगा। हम लोग करंट किस में मापते हैं? कोई डिवाइस का नाम बताओ जहां पर हम लोग करंट देखते हैं। एमीटर सर। और वोल्ट मीटर क्या दिखाता है? वोल्टेज। वोल्टेज। अब बताओ एक बहुत ही आसान सा सवाल, एमीटर किसी भी सर्किट में सीरीज में कनेक्शन करते हैं या पैरेलल में कनेक्शन करते हैं? सीरीज में सर। क्यों? क्योंकि सर पैरेलल कर देंगे तो सर करंट कहाँ से मेजर करेगा? ठीक, तो ये सर करंट बहुत, डिवाइडर रूल लग जाएगा। हाँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। इसीलिए एक ही आदमी बोला, तुम लोग 8 आदमी हो इस लैब में, सिर्फ एक ही आदमी ने आंसर दिया। तो बाद बाकी जो अगर नहीं जानते हो तो जान लो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप ऑर्गो साहब तुम लोगों को लैब का सेशन कंप्लीट करेंगे। ठीक है,
ओपन करो हेलो हेलो यस सर। मेरा आवाज क्लियरली सुनाई दे रहा है ना? हेलो। यस सर। अच्छा, सर ने क्या पूछा था तुम लोगों को? सर ने क्या पूछा था? एमीटर में कनेक्शन किस में होता है, सीरीज में होता है या पैरेलल में होता है? सीरीज में सर। क्या होता है? सर पैरेलल कर देंगे तो सर करंट डिवाइडर रूल लग जाएगा ना फिर सर। क्या हो जाएगा? करंट डिवाइडर रूल लग जाता है ना सर, पैरेलल कर देते तो करंट सब डिवाइड हो जाता है सर, जैसे पैरेलल करेंट। तो सर तुम लोगों को थियोरिटिकल पार्ट यहाँ पर बताया, तो मैं जो बताऊंगा ये वर्चुअल लैब सेशन में कैसे इसको कनेक्शन करना है, ठीक है? देखो इसमें सब कुछ दिया हुआ है, देखो यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, यहाँ पे देखो कनेक्ट कैसे करना है कंपोनेंट्स को, देखो यहाँ पर लिखा है। जब आप लोग वर्चुअल लैब में अपना लैपटॉप पे जाके भी इसमें देख सकते हैं, जैसे दिया हुआ है इंस्ट्रक्शन में, जैसे L1 L3 देखो। मैं ये है इंस्ट्रक्शन जो है यहाँ पर 13 प्रोक्योरमेंट है, तो यही मैं सर्किट में अप्लाई करूंगा और कुछ नहीं, ठीक है? और क्या करना है, यहाँ पर जो काट ऑफ जो वोल्टेज है, यहाँ पर जो नी वोल्टेज के बारे में सर ने आप लोगों को बताया, तो इसमें मेरे को रेजिस्टेंस मैं कितना दूंगा, 1 किलो ओम। इसके बाद ये जो इंस्ट्रक्शन जो दिया हुआ है L1 के साथ L3, 1 के साथ L3 हो गया, उसके बाद आपका हो गया L4 के साथ L7, और L8 के साथ L10, L5 के साथ L10, L6 के साथ L11, L9 के साथ L11, और L9 के साथ L12, जहां पर ग्राउंड का कनेक्शन है। हो गया सबको? क्लियरली दिखाई दे रहा है ना कनेक्शन कैसे हुआ? हेलो। यस सर। इसमें अभी क्या करना है, देखो रेजिस्टेंस में 1 किलो ओम का रेजिस्टेंस लूंगा पहले, रेजिस्टेंस ले लिया। इसके बाद VDC दिखाई दे रहा है तुम लोगों को? VDC 0.5 देखो शो कर रहा है। हेलो।
यस सर। इसमें देखो 0 पॉइंट अब जब 0.6 आएगा उसके बाद यहाँ पर रीडिंग देगा। देखो मैं पहले में एक काम कर रहा हूँ, ये लेके अप्लाई करूंगा इसमें। इसको अप्लाई करना है। देखो देखो अप्लाई, देखो फॉरवर्ड वोल्टेज और यहाँ पर फॉरवर्ड करंट, देखो यहाँ पर दिया हुआ है, देखो 0 शो कर रहे हैं ना। इसके बाद देखो 0.5 0.6 के अब जब यहाँ रीडिंग देना स्टार्ट करेगा, देखो अभी 8 है, चलो 80 पकड़ लेते हैं। 8 7 4 5 7 से स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पर ये देगा वोल्टेज और करंट का वैल्यू, देखो आ गया। देखो ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंट टेबल यहाँ पर है, दिखाई दे रहा है ना। यस सर। तो मैं 10 से 15 रीडिंग लूंगा, उसके बाद ग्राफ जो है यहाँ पर, वहां पर ग्राफ का ये यहाँ पर दिया हुआ, मतलब यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ जाएगा ग्राफ, और उसको प्रिंट आउट निकल के आप लोगों को क्या करना है, इसमें गूगल क्लासरूम में सबमिट करना है। ठीक है, यहाँ पर 0.7 दिया। इसके बाद नेक्स्ट देखो 1.2 के बीच में है, 7 के बाद 9 दे रहा हूँ। ठीक है, 9 के बाद 1.3 आ गया, 1.7 2 2.3 2.7 3.2 3.8 4.2। यहाँ पर हम लोग 5-6 रिजल्ट भी ले सकते हैं, लेकिन इसमें क्या हो जाएगा, ग्राफ का ठीक ठाक ही नहीं आएगा। ठीक है, इसलिए इतना मतलब एक्सपेरिमेंट टेबल में इतना नंबर लेना पड़ रहा है। 4.6 इतना आ गया। जब ग्राफ देखना है, यहाँ पर एक प्लॉट में जाना है। ठीक है, हम लोग सिलिकॉन डायोड में फॉरवर्ड बायस का कनेक्शन कैसा है वही देख रहा हूँ। यहाँ पर रिवर्स बायस में इसके बाद जाऊंगा, उसके पहले इसका ग्राफ चेक कर लो। ग्राफ अगर चेक करना है तुम लोगों को तो प्लॉट में जाना है। देखो आ गया, दिखाई दे रहा है सबको? हेलो, यस सर। यस सर। तो जब जैसे आप लोग गूगल क्लासरूम में सबमिट करना है, देखो प्रिंट यहाँ पर शो करेगा। देखो ये प्रिंट में जाना है, इसको प्रिंट आउट निकलना है और गूगल क्लासरूम में सबमिट करना है। ठीक है, ओके, हेलो, यस सर। ठीक है। ये फॉरवर्ड बायस जैसे सिलिकॉन डायोड जो है, इसमें फॉरवर्ड बायस का कनेक्शन कैसा है वही मैं यहाँ पर समझा है। इसके बाद जाएगा रिवर्स बायस में। देखो लिस्टर लिस्टर रिवर्स बायस कनेक्शन है, फॉरवर्ड बायस হয়েছে রিভার্স বায়স কানেকশন। কানেকশন তো হয়ে আছে। না ওটা এটা না, এটা দেখো না, যেটা কানেকশন করতে হবে ওটা দেখো। রিভার্স বায়াস। এটা কানেকশন
देखो ये रिवर्स बायस मतलब सिलिकॉन डायोड में रिवर्स बायस का कनेक्शन कैसे होगा, यहाँ पर देखो इंस्ट्रक्शन में दिया हुआ है, ठीक है। इसको मैं अप्लाई करूंगा यहाँ पर और उसके बाद रिजल्ट लूंगा एक्सपेरिमेंटेबल से, ठीक है। जैसे L1 L3 L4 L7 L8 L10, L1 L3 L3 कर दिया, उसके बाद नेक्स्ट है L4 L7 L8 L10 L5 L10 L6 L11 L9 L11 और आपका L9 L12। इसके बाद check. Okay. डायोड जो लेते हैं हम लोग 1N4007, Reverse saturation voltage. ये जो है Reverse saturation voltage. रिवर्स सैचुरेशन वोल्टेज है 30। इसमें 1 किलो ओम रेजिस्टेंस पहले अब मेरे को लॉक करना है, 1 किलो ओम रेजिस्टेंस। किलो ओम रेजिस्टेंस दे दिया। इसके बाद क्या करना है, Change the DC value. डीसी वैल्यू को, So you can see here there is no reading coming in the emitter. There is no change in the value of emitter. You can see here. Because it is reverse bias, so there is no change. I am changing the voltage, but there is no change in the, you can see it. Sorry, 1 minute. I'm changing the resistance, making it 1 kilo ohm. Okay, now I'm changing the DC value. See, there is no change in the emitter current. It is 0.100. So now it is 19, this is 20. Now it is 21, 23, 24, 25. Now there is a change. You can see 29 point, there I get a change, 28.8. So I will add some values here, add to table, one thing. Reverse saturation, reverse current is 0, 1.00, it is next. I'm again going to change 18.4, 19.4. There is no change. 22.7, there is no change. 25, there is no change. 27 point, there is no change. So this is 30. So near about 30, there will be a change. Look. You have to set the point there. Just a minute. Yes, 28.8. There is the first change. Okay. The leakage current starts. Again, you can see change in the voltage. There is the change you can see now. And the maximum is this, because after 30, if you give 30 voltage, that will be the breakdown voltage. And the diode will be now what? Please tell what will happen to the diode. The diode will burn out.
समझ रहे हो? यस सर। तो इसको प्लॉट करते हैं। आप देखो कांस्टेंट चल रहा है, कांस्टेंट चल रहा है, फिर देखो एकदम यहां से रिवर्स, वैल्यू कांस्टेंट कांस्टेंट कांस्टेंट, अभी चेंज हो रहा है, अभी देखो चेंज हो रहा है। So this is the plot. So you have to print it. I will be sharing it into Google Classroom. the Google Classroom. फॉरवर्ड वाइज सेव किया था, और वो फॉरवर्ड वाइज को भी सेव कर दो। So that is the reverse bias silicon diode, and that was the forward bias silicon diode. We will do the forward bias again, and we will save it, and then we will go for the germanium up in the next class. So there is a 3 minutes left in this session. So after completing this session, please wait for some time, 5 minutes, and then again join with the same link for the last session. Okay, have you got it? यस सर। Yes, sir. Sir, in this virtual software, sir, we can exceed the reverse voltage of 30 volt. 30 का रिवर्स वोल्टेज है, वो IN 4007 का 30 वोल्ट अच्छे रिवर्स वोल्टेज है उसकी। No, सर इसमें सर हम लोग सर बढ़ा के देख सकते हैं सर 31 32 जैसे आप नहीं सजेशन नहीं, चेंज वो कर रहे हैं। बड़ा कर, अगर बड़ा हो गए तो तुम्हारा डायोड टूट जाएगा, मतलब डिस्ट्रॉय हो जाएगा, बर्न हो जाएगा, इतना ज्यादा क्या लीकेज। सर वो सर फिजिकली वो हो जाएगा सर, ये सर हाँ सॉफ्टवेयर में सर होगा फिजिकल, सर, ये जो वर्चुअल हाँ सॉफ्टवेयर में। सॉफ्टवेयर में नहीं, वही वही तो आपने वो कर रखा है ना, वो जो कोडिंग जो बना के रखा है वही करके रखा है, इसीलिए तो एज ए डायोड वो काम कर रहा है ना। ठीक है, यस सर। so that is the table and that is the thing of forward bias. तो ये टेबल थोड़ा आप लोग थोड़ा अगर लिख सकते हैं या स्क्रीनशॉट्स कर सकते हैं तो कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है सर्किट डायग्राम और टेबल। सर्किट लिख दो, सर्किट। हम ग्रुप में शेयर कर देंगे गूगल क्लासरूम में, पर तुम लोग भी थोड़ा अगर स्क्रीनशॉट कर लो तो अच्छा होगा। क्योंकि लैब कॉपी में यही आपको देना पड़ेगा, जब लैब कॉपी हम लोग सबमिशन लेंगे गूगल क्लासरूम में तब ऐसे। Okay, so that is for this session. Next session we will do for the germanium. So the 1 minute is remaining. After this, the link will be automatically closed, and then please join the same link after 5 minutes. Thank you for attending. If any doubt, please ask. कोई डाउट अगर है तो बता सकते हो। हाँ हाँ। I think there is no, because you are not asking. So please join the same link after 5 minutes. यस सर।